আপনারা দেখছেন জঙ্গলমহল 24/7, রাত দিন 7 দিন সঙ্গে থাকে এগিয়ে রাখে। বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা পুরুলিয়া মানবাজার বিধানসভায়। আসন্ন 2021 বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি দলকে শক্তিশালী করতে প্রতিটি বিধানসভায় বিশেষ সাংগঠনিক সভার আয়োজন করেছে ইতিমধ্যে। কারণ গত লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া লোকসভা আসনে বিজেপি জয় কর্মীদের মনোবলকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে। তার আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও দারুণ ফলাফল করেছে বিজেপি। তাই 2021 সালের বিধানসভাকে পাখির চোখ করে এখন থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুরুলিয়া জেলায় সভা করতে শুরু করেছেন বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। সোমবার পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডাকে স্বাগত জানাতে ব্যাপক উৎসাহ ছিল কর্মী সমর্থকদের। মানবাজার বিধানসভার বিধায়ক সন্ধ্যারানী টুডু রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই এলাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার সভায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট দেখার মতো। যদিও এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্জুন মুন্ডা বলেন, যারা কয়লা মাফিয়া বালি মাফিয়া করে তারা দেশের কাজ করতে পারবে না, তাদের স্থান জেলে। আমাদের কর্মীরা বুক ফুলিয়ে রাজনীতি করে, ভারত মায়ের সেবা করতে জানে। পরে তিনি পুরুলিয়া বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতেও রওনা দেন। ব্যুরো রিপোর্ট, জঙ্গলমহল নিউজ 24/7, রাত দিন 7 দিন। মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব ভারতের সবথেকে লোকপ্রিয় নেতা, কেন্দ্রের মোদী সরকারের অন্যতম সদস্য, আমাদের সকলের প্রিয়। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো, ছাত্র জীবন থেকে আমি যখন কোনো কিছু সমস্যায় পড়েছি, রাজনৈতিক পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছে, ব্যক্তিগত পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কিংবা তারপরেও হোক, একটা অভিভাবকের রূপে আমি সবসময় পেয়েছি। সেই মাননীয় অর্জুন মুন্ডাজি মহাশয়কে আমি যে লোকসভার থেকে সদস্য, সেখানে প্রথমবার আসার জন্য আমি তাকে হার্দিক স্বাগত জানিয়ে সবাইকে অনুরোধ করবো, জোরদার একটা তালি হওয়া উচিত। करेगा और पुरुलिया मान बाजार थाट की ऐसे जगह में रहने वाले कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा होगा और माफिया अपने बिल पर घुसेंगे। ये उत्साह आपका बता रहा है, क्योंकि यहां जिस तरीके से पिछले 10 सालों में ममता जी की सरकार ने काम किया है वो सबके सामने है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि हर घर को शुद्ध पेयजल पाइपलाइन से मिलना चाहिए। तो भाई অপেক্ষা করছেন, আমাদের দেরি হলো, কিন্তু যে জোরদার ভাবে আপনারা স্বাগত এবং অভিনন্দন জানালেন, আমার তরফ থেকেও আমি জোরহাত করে সবাইকে নমস্কার করছি, অভিনন্দন করছি। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে এই পশ্চিম বাংলাতে পুরুলিয়া হোক কিংবা অন্যান্য জেলা হোক, কার্যকর্তা সংঘর্ষের ফলে এগিয়ে যাচ্ছে, आगे बढ़ रहे हैं और इस संघर्ष के माध्यम से कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में आज ज्योतिर्मय महतो जी हैं, हमारे जिला सभापति विद्यासागर जी हैं और पूरे जिले के कार्यकर्ता जहां भी जा रहे हैं, बहुत उत्साहित कार्यकर्ताओं का एक कारवां चल रहा है। 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का यह 3 दिवसीय दौरा हमारा बहुत ही उत्साहवर्धक रहा।
कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और लोगों में बहुत नाराजगी है। राज्य में लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन हमारा आज शहीद हुआ है सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में। और इस तरीके से प्रशासन का जिसे कहे निरंकुश प्रशासन अन्याय और अत्याचार के लिए हथियार का प्रयोग कर रही है और हमारा जो यह जनशक्ति है, जन समर्थन है, जन बल है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। जब ये स्पष्ट हो चुका है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है अलोकप्रिय हो गई है, अलोकतांत्रिक हो गई है और जनता को धोखा देने वाली साबित हुई है। जहां भी हम जा रहे हैं वहां हमें देखने को मिल रहा है कि जो वादा किया, जो विकास के बातें की और जिस तरह से लोगों के साथ में आश्वासन का सपना दिखाया गया, आश्वासन के बल पर दोबारा सत्ता में ये सरकार आई, वो सारा सपना गरीबों का, पश्चिम बंगाल के रहने वाले नागरिकों का सपना चकनाचूर हो गया। सही ढंग से नहीं हो रहा। अभी तूफान पीड़ित लोगों के लिए अम्फान में केंद्र सरकार के माध्यम से जो राशि दी गई थी, पैसा दिया गया था, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। उन लोगों को नहीं मिला जिन लोगों को मिलने का हकदार था, जिनको मिलना चाहिए था। बंदरबाट हो रही है पैसों की। वहीं भारत सरकार की जितनी योजनाएं जनता के लिए बनाई गई है, ये सरकार जनता को लाभ ना मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय मिलेगा, इसलिए उन सारी योजनाओं को जनता से दूर रख रही है। और जो सरकारी कार्यक्रम है, वो सरकारी कार्यक्रम जो भारत सरकार के माध्यम से जन तक पहुंचाने का संकल्प है। हमारे सांसद कड़ी परिश्रम कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं क्या हो सकती है, लगातार भारत सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर के पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार इस बात को लेकर खासा दुखी भी है, नाराज भी है, आक्रोशित भी है और आंदोलन के लिए उतारू हो चुकी है। एक परिवर्तन के तरफ जनता का रुझान बढ़ रहा है और इसलिए मैं कहूँगा कि होते हुए खड़गपुर, मिदनापुर, बांकुड़ा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से होकर पुरुलिया पहुंचे हैं। आप अभी भी देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का कितना उत्साह है और कार्यकर्ता किस ढंग से इस सरकार के इस अत्याचारी और दमनकारी नीति के खिलाफ बगावत करके झंडा उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो 3 दिवसीय यात्रा था वो बहुत अच्छा था। मुझे जो उनके आत्मीयता के साथ इस सरकार के प्रति उनका घृणा दिखा, मैं समझता हूं कि वो निश्चित रूप से इस राज्य को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाएगी। और यह कार्यक्रम जो 5 तारीख से प्रारंभ हुआ है, अभी फर्स्ट फेज में 12 तारीख तक चलेगा, 5 से 12 तक का कार्यक्रम। इसके बाद फिर हम अगली रूपरेखा के साथ लगातार कार्यक्रम करेंगे। हम विश्राम लेने वाले नहीं हैं। ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান দ্বারা বাড়ি তৈরির কথা ভাবছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। আমাদের এখানে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা বাড়ির প্ল্যান এস্টিমেট করা হয় এবং বাড়ির যাবতীয় নির্মাণ কার্য সুদক্ষ মিস্ত্রি দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।
অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আপনাদের স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ কাজে আপনাদের স্বার্থে নিয়োজিত অরবিট কনস্ট্রাকশন। ঠিকানা বড়াবাজার, বড়াভূম, পুরুলিয়া। প্রস্তুর থেকে গৃহপ্রবেশ আমাদের দায়িত্ব। তাই বিশদ জানতে এখনই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। আমাদের নাম্বার 9614188316, 9126914106। অরবিট কনস্ট্রাকশন।